वो दे डोंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन चाइना, तो उसकी यहीं पे डेथ हो जाती थी। ओह, थैंक यू सो मच। इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, The कि वो one डरती who, है या नहीं? the one who will act. दिस इज रियली स्वीट ऑफ यू। आई मीन, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ जी, See मैं that? दो पत्ती वाला भी हूँ, और अभी मेरी दाढ़ी नहीं है। शी गॉट मी दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। तो 2015 में जो भूकंप आया था, ऐसा कहा जाता है कि तब इनको पसीना आया था। आप enjoy करो। मैं एंजॉय करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। सब्सक्राइब गाइस। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए व्लॉग में। आज मेरा है दूसरा दिन, टेक्निकली पहला ही कहूँगा क्योंकि कल मैं रात को पहुँचा। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ पे एक दोस्त बनी थी कल रात को मेरी, तो मैं उसी के साथ अभी ब्रेकफास्ट या ब्रंच करने वाला हूँ। एनीवे, शी इज़ चाइनीज़ एंड शी इज़ टीचिंग मी अ गेम। ये मुझे एक गेम सिखा रही है। वी ऑलरेडी लर्न 15-15 विच आई लॉस्ट, एंड नाउ शी इज़ टीचिंग मी न्यू गेम। उसका व्हाट्स द नेम ऑफ द गेम? द न्यू game, this one. It doesn't have a game. It doesn't have a name. Yeah, You said game, okay. sorry. You know my English is poor. I don't speak English, and I usually just speak Chinese. How do you call the male chicken? Male chicken, cock. Yeah, a cock. Okay, And do you know what this cock is? Just kidding. And this is a worm. Yeah. So, I yeah. would like to leave the bomb. Okay. No. Now, right now, you have this finger. Hold it. Okay. You have this finger, right? Okay. Then I have This this. is the finger. god. Yeah. Then I win. Yeah. Yeah. If this is like, then this is equal. This is equal. Yeah. Nobody Get it? wins. Yeah. You get it now? Oh, this is not complicated. This is very easy. Then I still have another game. बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। So my laughter is like. Go. 2, 3, 4, 6, 8. 9. Do you have any favorite books? Favorite books? Yeah. Not really. Like Constitution of China? Constitution of China. What is Well, they don't have a constitution in China because it's not a democracy. You mean this kind of constitution? Construction, not construction. ये construction को constitution कह रही है। नहीं, Yeah. constitution like we are free people. We have all the rights and everything. Some like equality and everything. Don't really get it. Okay. नहीं भाई, thank you. What? He's asking if I want smoke or weed. I can't go crossing. Okay. No. Thank you. नहीं. This is a nice area actually. You know, I didn't know about this. ये ऐसे ना बीच में से रास्ता है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. इसके बीच में से होके जाओ. It's a shortcut for Tamil market. Yeah, introduced by me. I plan to live here for a month. But it's quite cheaper than China, right? Much cheaper. Yeah. Like half the price? No. Even less than half. Wow. ये कह रही है कि चाइना से बहुत सस्ता है. चाइना के में जो रेट्स होते हैं उसके आधे के भी कम है नेपाल. You should know that the first day I came here, Mm-hmm. the motorbike driver, he charged me 800 Nepalese. What? Yeah, rupees. But right, that was my first time in Nepal. At the end of the trip, he charged me 1,000 and I said 800. ये And देखो I said, लैंग्वेज you बैरियर know, होता है you're बिकॉज शी इज French. चाइनीज. लैंग्वेज का इशू है. अपने इंडियन लोग तो वैसे ही भाई शाने होते हैं, और ये इनको भाई 800 रुपये नेपाली रुपए चार्ज कर लिए. मैं तो 100 रुपये में आया था, 70 रुपये में आया था, वो मैंने टिप दे दिया था. बट शी गॉट चार्ज 800 नेपाली रुपीज. At the end, he wanted 1,000 and I said, don't ruin the reputation of your Wow, country. wow.
you know, all kinds of people are everywhere, but we cannot judge through, like, just because of one person we cannot judge Yeah, the whole sure. community. Sure. So I said that, then he gave the charge back to me. Oh, what time is your class Right now. right now? Yeah, Okay. I'm gonna go. तो जूनिपर की क्लास थी, गिटार क्लास, वो चली गई है। भाई देखो यहाँ पे ना लोग महीनों महीनों रहते हैं। जूनिपर को तो चलो 10-12 दिन हुए अभी आए को, और यहाँ पे रह के वो सीख रहे होते हैं, अपना नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं। क्लाइंबिंग कर रही है वो, गिटार सीख रही है। और अपने जो इंडियंस का स्टाइल है मेनली ट्रैवल करने का, वो है भाई 1 हफ्ते का हम टाइम निकालते हैं, उसी में हम सब कुछ 2 दिन पोखरा, 2 दिन काठमांडू, 1 दिन यहाँ पे, ये वो हम ऐसे करते हैं। बहुत कॉम्पैक्ट होता है। Well, that's true in a way. उसमें कुछ आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो, तो मेरे को लगता है यार अपने को भी ऐसा ट्राई करना चाहिए। जस्ट अभी स्टडीज़ किया है, पास आउट हुए हैं, वो गैप लेते हैं तो 1 साल के लिए पूरा ट्रैवल करते हैं, लाइक महीनों महीनों तक। वो एक तो उनका ये भी रीज़न है कि उनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग है। 10 hours later. दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस, बट स्टिल हमें इंस्पायर होना चाहिए इस चीज़ से कि हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि इस तरह की जो लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है, लॉन्ग थम के जो ट्रैवलिंग होती है, एक्सप्लोर करके कल्चर्स, यू नो, फन भी करते हैं, सब कर रहे हैं, तो वो करना चाहिए। एंड दुनिया समझते हैं इस तरीके से, नहीं तो हम एक बबल में रह जाते हैं अपनी दुनिया में। सो या दैट इज़ अ गुड थिंग टू लर्न। एंड अभी मैं अपने, ये मेरा हॉस्टल है पीछे, मतलब डॉम है मेरा, इसमें मैं अभी जाके यहाँ पे थोड़ा चिल करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है, एंड देन आई लीव इन अ व्हाइल अगेन, थोड़ा सा रेस्ट करके। सी यू। तो मैंने थोड़ा अभी रेस्ट वेस्ट कर लिया है, और मेरे को ना ऐसा थोड़ा फील हो रहा था गले में, ऐसा टॉन्सिल्स जैसा, कि टॉन्सिल्स हो ना जाए, इसीलिए तो मैंने ना सोचा कि थोड़ा गागल्स कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ से बहुत अच्छे हैं ये हॉस्टल वाले, इन्होंने मुझे पानी दिया, बीच में हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, और मैंने गागल्स कर लिया और थोड़ा रेस्ट किया, चिल किया, और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। सो वाया वाया मैं किसी और से भी मिल लिया अभी। मेरे एक दोस्त है, उनकी एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि आज मेरा ऑफ है तो मैं तुम्हें घुमाती हूँ आज काठमांडू। तो अभी मैं, वो लोकल है यहाँ के, हैं, लोकल से बेटर क्या होता है किसी के साथ घूमना। तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि एक लोकल है, उनके साथ उनका शहर एक्सप्लोर किया जाए। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, एंड अभी बज रहे हैं 5, अपने पास आधा दिन है, और आज ना फ्राइडे नाइट है, तो मैंने सोचा कि अभी दिन में घूमते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद, क्योंकि रात को जो है थामेल की फ्राइडे नाइट जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पे तो मुझे आना ही है, इसीलिए जो थोड़ा बहुत बाहर में घूम सकता हूँ घूम लूँगा। अरे ये कांटे लगाए हुए हैं यहाँ पे। शी जस्ट कॉल्ड मी, शी इज़ वेटिंग फॉर मी हियर। मैं यहाँ पे पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, जहाँ पे जो मेरी वो दोस्त है मेरा वेट कर रही है। चेक दिस प्लेस, आई एम हियर। हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस यू? So she's a psychologist, right? Yeah. She can read minds. You can read minds. Not like that. Oh, thank you so much. This is really sweet of you. I mean, ये तो मैंने expect नहीं किया था. She got me this. Thank you very much. It's very kind of you. You know, this shows the culture of Nepali people. They are like very, 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 very sweet. She got me this beautiful flower. Thank you. एक बार मैं इसको अंदर ही रख देता हूँ, है ना? ऐसे रख देता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर, और नेपाल में 3 दरबार स्क्वायर हैं, एक पटन में है, एक भक्तपुर में है, एंड वन इज इन बसंतपुर। तो 3 दरबार स्क्वायर हैं, और दरबार स्क्वायर का मतलब ही ये होता है कि जो पुराने टाइम पे, राजा के टाइम पे जो दरबार लगा करते थे, राजा वहीं से जो सारा कंट्रोल होता था, सेंटर होता था, वहीं पे सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी। सो इसलिए जो दरबार स्क्वायर वो बनाया गया था। और नेपाल शुरू से ना बहुत यूनाइटेड नहीं रहा है, इसमें अलग अलग राज्य हुआ करते थे, तो सब ने अपना अपना दरबार स्क्वायर मतलब बना रखा था। सब बहुत खूबसूरत है। अभी हम पहले जा रहे हैं बसंतपुर वाले में, तो अभी हम वो वाला जाके देखते हैं। यहाँ पे मेट्रो नहीं है ना? नहीं। और लोकल ट्रांसपोर्ट जो होता है वो है? हाँ, लोकल तो है। लोकल है। ये जो लोकल, ये वैन जो जा रहे हैं सब, हाँ हाँ, ये वैन लोकल है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे शेयरिंग में वैन्स चलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बसेस चलती हैं लोकल, यहाँ पे वैन्स चलते हैं शेयरिंग में। बस भी चलते हैं। बस भी चलते हैं। यस। नेपाल में अभी कुछ दिन पहले एक नया सिस्टम आया है, जिसमें सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी मिलता है।
अच्छा, तो जैसे इंडिया में अपने मतलब मोस्टली जगहों पे जो संडे होता है हमारी छुट्टी वाला दिन, यहाँ पे नेपाल में सैटरडे होता है। यस। सैटरडे छुट्टी वाला दिन होता है, लेकिन अभी एक नया रूल आया है यहाँ पे, जो भी बालेन सरकार है उन्होंने एक नया रूल निकाला है कि संडे को भी अब छुट्टी रहेगी बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, जो भी ऑयल के क्राइसिस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च ना हो, इसलिए संडे का दिन भी ऑफ कर दिया गया है। जैसे अपने इंडिया में भी हुआ है कि मोदी जी ने कहा है कि अपना घर से बैठ के काम करो, वर्क फ्रॉम होम जितना हो सकता है ना, और विदेश यात्रा मत करो, मैंने तो कर लिया है। तो अपना नेपाल जैसे अपने देश जैसे ही है, वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया मैं, सॉरी मोदी जी। हाँ, तो यहाँ पे पर ये बता रहे हैं कि संडे को ऑफ करने की वजह से लोग और ज़्यादा घूम रहे हैं अभी बाहर, तो और ज़्यादा लोगों के मज़े हो गए हैं, और ज़्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है। यहाँ पे बिना लाइसेंस के नहीं चला सकते ना, नो, सो आई कैन नॉट ड्राइव। चला तो सकते हैं अगर पुलिस पकड़ हाँ, मतलब चला सकते हैं, ऑफ कोर्स पुलिस पकड़ सकती है, मेरा कहने का मतलब। यहाँ पे यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, देखो सब लाइन में लगे हुए हैं, कोई भी एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं निकल रहा है। इंडिया में होता है ना, ये ऐसे मतलब साइड से निकल जाते हैं, that यहाँ won't पे happen. एकदम लाइन में खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा डिसिप्लिन है यार, इंडिया में ये देखने को नहीं मिलता है। ये देखो यार, ये सीखने वाली चीज़ है। They will get fined. लाइन के एकदम इधर नहीं है, कोई भी इधर नहीं है। इंडिया में तो भाई सब रूल तोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके टेक ओवर करके निकल रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल मेजर सिटीज। If they will cross, there's a camera. ओके, ये बता रहे हैं यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, देखो कैमरा लगे हैं, Speed तो or अपने आप anything. चालान वगैरह कट जाता है अगर कोई ऐसा करता है तो, कोई रूल तोड़ता है तो। पर ये इंडिया में भी लगे हैं, इंडिया में दे डोंट केयर अबाउट। ये इधर टर्न लेने के लिए खड़े हुए हैं क्या ये सब? ये सब सीधा जाएंगे। हाँ, हम टर्न लेंगे। यार अच्छा खासा डिसिप्लिन है यार, देखो ये एकदम ऐसा लाइन वाइन में खड़े रहते हैं यहाँ पे लोग, दूसरे को रास्ता देके, कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है, कोई हौच पौच नहीं कर रहा है। तो बता रहे हैं यहाँ पे 2015 में जब अर्थक्वेक आया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ था काठमांडू में। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये आसपास वाली, ये भी नया बना है। तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट की गई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जो उस टाइम पे बर्बाद हो गई थी। नहीं, पहले ये था। हाँ, सो अर्थक्वेक में ये गिर गया। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये दिख रहा है, ये काफी जो टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, ये अर्थक्वेक के ही जो अभी भी मलबा पड़ा हुआ है वही है, वही बाकी है। वही बाकी है, अर्थक्वेक वाला ही है ये। इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ का मार्केट है, यहाँ पे कपड़ों से लेके खाने पीने की हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। इस मार्केट का नाम है पीचा पोखरी। काफ़ी क्राउडेड है यहाँ पे, लोकल लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं टूरिस्ट से ज़्यादा। लोकल मार्केट भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये लोकल मार्केट है यहाँ का, इसमें होलसेल भी होता है, रिटेल्स भी होते हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए वसंतपुर के दरबार स्क्वायर में। इधर से यहाँ पे नो एंट्री है। स्कूटर बाइक, अच्छा, स्कूटर बाइक इसके अंदर अलाउड नहीं है, तो अभी हम पार्क करके फिर हम वॉक करके वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं वसंतपुर के दरबार स्क्वायर, और ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में आता है। और यहाँ पे टोटल 3 दरबार स्क्वायर हैं। अभी हम पहले वसंतपुर वाले में आए हैं, क्योंकि इनके हिसाब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, और अभी अंडर रेनोवेशन चल रहा है। ये देखिए, ये सब अर्थक्वेक के टाइम पे। किसके टाइम पे? अर्थक्वेक के टाइम पे टूटा था ये भी। बहुत ज्यादा, सब जगह नुकसान हुआ था, तो सब बन ही रहा है। ओके, तो जब 2015 में अर्थक्वेक आया था, ये सब भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बहुत नुकसान हुआ था इन्हें। और अभी तक ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एकदम पुराने जैसा ही रिस्टोर करना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा सर्वेज लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत और फंड्स की ज़रूरत होती है। मार्केट काफ़ी हैपनिंग है यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह भी आगे चिल कर रहे हैं ना? वही कह ये अच्छा स्पॉट है, मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पे आके चिल करते हैं, नॉट जस्ट टूरिस्ट हमारी तरह। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये काल भैरव की मूर्ति है। ये उन्होंने बताया कि पुराने टाइम में जब कोई क्राइम करता था या झूठ बोलता था, तो ये एक तरह का कोर्ट था। ये जगह जो है कोर्ट, जहाँ पे फैसला सुनाया जाता है। और फैसला कौन सुनाता था? काल भैरव जी, क्योंकि हाँ, भगवान जी। तो यहाँ पे लाके जो क्रिमिनल है उससे सवाल पूछा जाता था कि भाई आपने क्राइम किया है या नहीं किया है। तो अगर वो झूठ बोलता था तो उसकी यहीं पे डेथ हो जाती थी, ऐसा मतलब माना जाता है। इस चीज़ का प्रूफ तो नहीं होगा, बट ऐसी मान्यता है। कितने साल पहले तक? ज्यादा साल तो पुराना नहीं है नेपाल का। हाँ, इतिहास देखेंगे तो ये जो सामने काल भैरव जी की मूर्ति है, यहाँ पे
मतलब इतना डार्क इतिहास है यहाँ पे, मतलब कितनी सारी मौतें हुई होंगी, डेथ्स हुई होंगी यहाँ पे। पक्षियों की आवाज़ें सुन रही है ना यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। कबूतर आए हुए हैं, पक्षियों की आवाज़ें, नेचर, क्लोज टू नेचर, अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल, बट अच्छा है, पुराना वाइब्स आ रहा है एकदम यहाँ पे, हिस्टोरिकल वाइब्स। श्वेत भैरव, हाँ, आगे श्वेत भैरव, श्वेत भैरव, जैसे वो काल भैरव थे वो ब्लैक कलर के थे, Yes, आगे है श्वेत श्वेत भैरव व्हाइट, That's pretty racist, but correct. yes, गोल्डन। good. या इनकी स्टोरी देखो, ये है श्वेत भैरव। ऐसा कहा जाता है कि अगर इनको पसीना आता है तो कुछ ना कुछ दुर्घटना घटने वाली है। मतलब पसीना आ रहा है मतलब गुस्सा आ रहा है ना। पसीना तो तभी आता है कोई गुस्सा कर रहा है या फिर कुछ गर्म हो रहा है अंदर से। सो Might be not satisfied with something. तो यहाँ पे ऐसा फैन मैन लगा के रखा है कि नहीं अंदर? नहीं, कहीं इनको जब भूकंप आया था तब पसीना वसीना आया था इनको? हाँ, हाँ। yes, there was a saying. इसमें भी हुआ था एंड और भी ज्यादा टाइम पे अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो कुछ घटना तो 2015 में जो भूकंप आया था ऐसा कहा जाता है कि तब इनको पसीना आया था। ये जो क्या कहते हैं रॉयल उसका मैसेकर जो हुआ था उसके टाइम पे भी। अच्छा, अरे काफी अच्छी जगह है, लाइक ऐसा पुरानी हिस्टोरिकल टाइप की। जैसे मुंबई में हम ना छुट्टी वगैरह होती है तो हम मरीन ड्राइव पे चले जाते हैं घूमने के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए। तो वैसे ही काठमांडू के लोग जो है छुट्टी वाले दिन रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये सब यहाँ पे इनमें से लोकल लोग ही ज्यादा हैं आई थिंक, है ना? हाँ, maximum. और आई थिंक ऑल ओवर नेपाल से, बाकी सिटीज से भी यहाँ पे लोग आते होंगे, आसपास की सिटीज, गाँवों से। तो ये देखो, ये जो घंटा दिख रहा है इतना बड़ा, अभी वीडियो में छोटा दिख रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब मेरी हाइट से ज़्यादा बड़ा होगा। तो जब भी पूरे शहर में कभी नोटिस भेजना होता था, कुछ अनाउंसमेंट करनी होती थी, तो इस घंटे को बजा के बुलाया जाता था सबको यहाँ पे, फिर अनाउंसमेंट की जाती थी। बिकॉज दिस इज़ दरबार स्क्वायर, यहीं पे सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और सेरेमनीज वगैरह सब यहीं पे होता था, सेलिब्रेशंस। यहाँ पे राजा आते थे, अनाउंसमेंट करते थे और लोगों को जो भी अगर कुछ कन्वे करना है, एड्रेस करना है, तो वो यहाँ पे आके करते थे। इसके अंदर गद्दी बैठक करके है, अच्छा, जहाँ पे अगेन मैसेकर हुआ था। वाओ, नेपाल में बहुत मैसेकर्स हुए ना, और वो गद्दी के पीछे ही हुए हैं ना? हाँ, गद्दी के लिए हाँ, हुआ मतलब था क्योंकि सब। नेपाल में मैंने ये पढ़ा था कहीं पे कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स बहुत चलती आ रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम रही है और जो राज्य हैं आपस में लड़ा करते थे, जो राजा हैं, जो किंगडम्स थे। ये थोड़ा विक्टोरियन स्टाइल में बना हुआ है, ये आई थिंक बाद में बना होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो कभी कॉलोनाइज हुई नहीं, तो इसीलिए इनका कोई स्वतंत्रता दिवस माने इंडिपेंडेंस डे है ही नहीं यहाँ का। तो This is कुमारीगढ़. कुमारी वर्ग, कुमारी is the living goddess of Nepal. कुमारी का मतलब होता है कि जिसकी शादी नहीं हुई, Living goddess. लिविंग गॉडेस होता है। कुमारी का कुछ फेस्टिवल भी होता है ना, पूजा की जाती है। टाइम एंड अगेन होते रहता है। तो एक कुमारी का टेंपल के है। अंदर, हाँ, अंदर ही रहती हैं। अच्छा, And then she is not allowed to put her foot and feet on the ground. अच्छा, तो तो इसको खोलते हैं, जाना अलाउड है अंदर? अभी तो नहीं है। 2 बार तो दिन भर में 2 बार शायद होता है, और एक टाइम 5 बजे तक खुलता है, उस टाइम में जाने मिलता है, बट नो कैमरा, नथिंग इज अलाउड। अच्छा। एंड उस टाइम में भी शी विल बी इन द टॉप, एक ऐसे जो विंडो है वहाँ से देखेंगे, जस्ट वन झलक टाइप ऑफ मिलेगा। अच्छा, मुझे लगा कि कोई कुमारी की पूजा की जाती है का मतलब जो कुमारी कन्या होती है, लड़कियों की दे पूजा आर की जाती है। चूजन ये निवारी कल्चर की। अच्छा, एक्चुअल लिविंग बीइंग रहते हैं यहाँ पे। लिविंग गॉडेस, Oh, right. एक्चुअल गॉड। How old is she? New one was there around she's around 2 years I think. वो छोटी सी बच्ची हाँ, है। अभी so और वो फिर once उस- she will starts period then they will change again. तो फिर न्यू कुमारी हो New जाएगी। कुमारी, yes. तो मतलब 13-14 की एज तक जब उनके पीरियड्स आ जाते हैं तब उनको वो जो कुमारी कन्या होती है जिनकी पूजा की जाती है वो Change हो जाती है। हाँ, वो मतलब नेक्स्ट में चली जाती Next में, and है। यहाँ- जैसे दलाई लामा के होते हैं, हाँ, दलाई लामा के बाद एक के बाद फिर दूसरे it is होते हैं। also post हाँ, not पोस्ट है, a पोस्ट, type राइट of- राइट। तो चूज कैसे करते हैं, किस बेस There are so many criteria ओके? like एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से लेके जाते हैं। सम मेवाड़ी कल्चर के भी हाई कास्ट कम्युनिटी से ही बिलोंग अच्छा। करना होता है। एंड देन तो बॉडी यहाँ पे में कास्टिज्म कितना भी है नेपाल में। एक तो स्पेसिफिक कास्ट से होनी चाहिए और दूसरा उनको लाइक चेक किया जाता है कि वो सो मेनी क्राइटेरिया विल बी देयर। डिफॉर्म तो नहीं है, कुछ में फॉल्ट तो नहीं है उनकी बॉडी में।
और उसके बाद इवन द साइकोलॉजिकल थिंग्स भी चेक होता है, कि जैसे मेंटली कि स्टेबल है और वो नो सब चीजें फिर नॉट दैट, हम्म, बच्चे को एक रूम में 3 लोग को चूज करेंगे, एक रूम में रात भर के लिए रख देंगे, एंड देयर विल बी सम मार्क्स एंड ऑल, डरावना मार्क्स सब रखा रहता है। हाँ, हाँ। अच्छा, कि वो डरती है या नहीं? द वन हु विल एक्ट ब्रेवली। अच्छा, तो जो जीत जाएगी, मतलब जो एक तरह से डरेगी नहीं, एक हाँ हाँ, शी विल ओवरकम एवरीथिंग, ऑल द चैलेंजेस। Because she will not come out of that house for this several years. तो पूरा टाइम वो अंदर रहती है? अंदर रहेंगे just for some occasion, जब कुछ होता है तब नो बस इंटरनेट, उनको- नथिंग, nothing, स्टडी। स्टडी कंटिन्यू होता है। तो अंदर टीचर अंदर आते पढ़ाते टीचर हैं, अंदर कुछ आएंगे, चाहिए, डॉक्टर पढ़ाएंगे, है, सब सब चीज- कुछ है, सब अंदर सब चीज है। अंदर होगा। तो बाहर की दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, जो बाहर की हवा है, वो उनको नहीं मिल पाता बहुत सालों तक। नहीं, Wow. बस ये उन लोग के कल्चर में सम क्या कहते हैं, कल्चर अनुसार कुछ प्रोग्राम रहता है, तो यहाँ से तो मतलब जब उनको उनकी पूजा होती है, गोद में रख के निकालेंगे एंड देन चैरियट पे बैठाएंगे, हाँ। उसके बाद लेके जाएंगे। शी इज नॉट अलाउड टू टच द ग्राउंड। वाओ, ओके। मतलब सिर्फ ओकेजनली वो बाहर आएंगी, वो भी उनको ग्राउंड पे टच नहीं करेंगे, उनको एक जैसे डोली में या फिर या बग्गी में ले जाके उस तरह से चैरियट होता है, उस हाँ। चैरियट में रख के उसके बाद घुमाएंगे। तो वो सेलिब्रेशन होगा, फिर वापस उनको वापस अंदर लेके ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो पुरानी कुमारी जी थी, वो जब मतलब जो हो चुकी हैं, मतलब जो बाहर आ चुकी हैं, वो कैसी जिंदगी जी रही हैं? They will have their own normal life. नॉर्मल लाइफ, बट इससे आगे पहले लाइक जो बट उनको थी- डिफिकल्टी नहीं आती होगी थोड़ी, क्योंकि एकदम से उनके लिए सब कुछ नया है, इतने सालों के बाद बाहर आना और ये देखना कि अच्छा यहाँ पे इतना कुछ है इस दुनिया में, तो और वो अपने एक शेल में रही हैं पूरी जिंदगी, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता होगा ना उन पे। ऑब्वियसली वो तो होता ही होगा, बट वी हैव सीन अभी जो चेंज हुई है रिसेंटली, शी इज वेरी लाइक एक्टिव ओके, in the social medias और सारी जगह तो वो पे post she डालती है? lies post, मतलब like she is very good with camera and all, she wants अच्छा, interaction, interaction and all. like you, I'm good at with camera. yeah, you're camera friendly, yeah, First one to say that. yeah. Yes, few years लग सकता है अडॉप्ट होने में ये environment में, but they will have their normal life. अंदर सब चीज उनको मिलता है, it's just कि they are not allowed to see the outer world throughout that period. बस कुछ समय में आते हैं। बड़ा कितनी मतलब मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ है, मेरे को इस बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे एक लिविंग कन्या जी को यहाँ पे रखा जाता है, और इस तरह से जो रिचुअल जो है फॉलो किया जा रहा है आज के टाइम पे, यू नो, लाइक विच शोज रिचुअल इज स्टिल विनिंग, बिलीव इज स्टिल विनिंग ओवर मॉडर्न टाइम्स में भी, लाइक पीपल आर And there is belief जो कि होता भी है, होता if भी she है। cries then हाँ। something bad is going to ओ, happen. तुमको रोने नहीं देते हैं? रोते नहीं, रोए जहाँ तक बच्चे है। हैं, बच्चे तो रो देते हैं। बच्चे तो रोएंगे, so if she cries, हाँ। not every time but किसी टाइम पे, अब जैसे ये बैठा के निकाले हैं बाहर, उस समय अगर इट्स नॉट कि she wants to cry and cry, but सच में कुछ एनर्जी होता है। मैंने वो भी सुना है कि एक यहाँ पे कुकुर फेस्टिवल होता है, कुत्तों का ना, कुकुर कहते हैं उसे, वो क्या होता है? ये दीपावली के टाइम हम लोग हाँ। तिहार कहते हैं, हाँ। उसमें 5 दिन का होता है, सो इट इज कुत्तों की पूजा होती है उसमें? हाँ, कुछ तो अच्छा। भी होती है। और इमेजिन करो, यहाँ से थोड़ी ही दूर चाइना का बॉर्डर है और चाइना में खाते हैं। यस, कुकुर का होता है, क्रो का होता है, गाय का होता है, and गाय then का? लक्ष्मी पूजा, हाँ, एंड देन भाई टीका। और भाई टीका, भाई टीका मतलब भाई टीका, भाई टीका, राइट, टीका ओके, putting कूल। for यहाँ it. पे काफ़ी सारे सुवेनियर्स और ये इससे रिलेटेड, इनके कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, घर पे ले जाने के लिए जो सुवेनियर्स होते हैं वो सब भी हैं, और अगर किसी को एंटिक चीज़ों का शौक़ है तो उस तरह की भी सब चीज़ें यहाँ पे हैं। मोस्टली फॉरेनर्स को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नया है। इंडिया में तो फिर भी ये सब हमने देख रखी है ये सब चीज़ें, बट या ये रियल चाकू है? हाँ, खुखरी, खुखरी कहते हैं इसे, चाकू को? खुखरी। अच्छा, कुत्ते को कुकुर और इसको खुखरी? खुखरी नेशनल वेपन ऑफ नेपाल। अच्छा, बट उसके कुत्ते की पूजा का क्या रीजन है? They look after us. like they're so जैसे one trustable friend. वफादार होते हैं, यू कैन रिलाई ऑन देम, है ना? Yes. अमेजिंग यार, ये तो बहुत अच्छा है कि एक सिंबॉलिकल चीज़ है कि कुत्तों की पूजा करना, कि वो हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं इंसान के, और कितने हमारे काम आते हैं, हमें हेल्प करते हैं।
दिस इज एक्चुअली नाइस प्लेस जस्ट टू हैंग आउट ऑल्सो। मतलब यहाँ पे हिस्ट्री के अलावा भी अगर आपको वैसे भी घूमने आना ना तो भी आपको मज़ा ही आएगा। अगर आपको लाइक सिर्फ गुड वाइब्स चाहिए आपको घूम सकते हो। मौसम भी अच्छा है आज तो। आज तो अच्छा है। हाँ, थैंक्स टू द We are lucky. रेन इन द मॉर्निंग आई एम लकी। Yes. आई थिंक एक दिन में तो इंसान एक ही दरबार स्क्वायर अच्छे से घूम सकता है अगर अच्छे से करना है। टाइम पे आए थे। हाँ हाँ हाँ। ये इसके अंदर भी है, हम लोग जाने मिलता है अंदर। हाँ। 5 बजे तक का टाइम है। आज हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि मैं लेट हो गया था, बट या स्टिल थैंक्स टू हर। ये स्टिल यू नो शी केम एंड वी आर एक्सप्लोरिंग व्हाटएवर वी कैन। बोबा टी खाना है? क्या खाना है? बोबा टी? दो बाटी बोबा। बोबा टी। यस। अच्छा जो वो राउंड वाला होता है उसके अंदर। yes, हाँ, boss है। नहीं, वो चलिए मैंने खाते बहुत अच्छा होता है। अच्छा। मैं बस जो कोल्ड चीजें हैं ना वो मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ मेरे को। Okay. हाँ मैं भी गॉगल्स करके आऊंगा। आई कैन Coffee? हैव एंड या हॉट आई कैन हैव एनीथिंग। चलिए हिमालयन जावा कॉफी, नेपाल का फेमस कौन सा? पॉपुलर हिमालयन जावा कॉफी। हिमालयन जावा कॉफी फेमस है यहाँ बहुत ज्यादा ब्रांच है इसका। पे? अच्छा, हिमालयन जावा कॉफी हम I जा रहे हैं prefer पीने के लिए। हिमालयन जावा कॉफी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और इन्होंने बताया कि हिमालयन जावा कॉफी जो है नेपाल का वर्ल्ड फेमस है और सब जगह पे इसके ब्रांच है। तो वी गोना नेपाल ट्राई। में वर्ल्ड फेमस है। नेपाल में वर्ल्ड फेमस है। सो वी गोना ट्राई नेपालीज जावा कॉफी। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। हवा भी, खिड़कियाँ खुली है तो हवा अच्छी चल रही है। यहाँ पे एसी वेसी की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो जावा कॉफी हाउस से ऐसा व्यू आ रहा है। इट्स नाइस, क्वाइट नाइस। तो भैया हमने कॉफ़ी पी लिया। कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी वाकई, बहुत अच्छी थी कॉफ़ी। मैंने तो फीकी पी के कॉफ़ी का असली टेस्ट आता है। इन्होंने मीठे के साथ पी। आई नीड या अभी हम जाने वाले हैं थोड़ा सा और हाँ घूमते हैं बाहर। अंधेरा हो रहा है, इससे पहले कि थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए हम थोड़ा और टहलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कीर्तिपुर, जहाँ पे इनका कॉलेज वगैरह भी था। ये वो एरिया इन्हें काफ़ी अच्छी तरह से पता है। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी जगह घूमी जाए जो काठमांडू में है और जो लोकल है और जो नॉन टूरिस्टी है थोड़ा सा। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और वो थोड़ा सा ऊंचाई पे है तो वहाँ से काठमांडू का हमें व्यू भी दिखेगा। तो अभी हम जा रहे हैं कीर्तिपुर। और वहाँ पे और क्या कुछ चीज़ें फेमस हैं लाइक अपार्ट फ्रॉम यू? That was good. Yes, मंदिर है। मंदिर है, दो मंदिर है। हम्म। So we will go there and then वैसे मेरा कॉलेज है ट्रिब्यून यूनिवर्सिटी, नेपाल का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम पढ़े हैं। So अच्छा। we will explore वो जहाँ पे area। इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है मास्टर्स में। शी इज हाईली इंटेलिजेंट पर्सन एंड यूनिसेफ के साथ काम किया इन्होंने और अभी भी कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, लेक्चरर है। मुझे बहुत सीखने को मिला इनसे आज, हिस्ट्री के बारे में भी और साथ में साइकोलॉजी के बारे में भी। अभी ज़्यादा क्राउडेड हो गया थोड़ा। अभी जैसे थोड़ा मौसम और ठंडा हो गया ना, जैसे जैसे शाम होती जा रही है यहाँ पे ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। सब अपना काम खत्म करके। मस्त जगह है यार ये, देखो। और जैसे जैसे थोड़ा शाम होता है ना यहाँ का व्यू और बदल जाता है क्योंकि लाइट्स जो है वो ऐड ऑन करती है यहाँ पे। एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी, यहाँ पे किसी ने कुछ कचरा वगैरह नहीं फेंका हुआ है। It should be thrown there. हाँ It should be thrown there. हाँ, मतलब डस्टबिन है उसी में फेंक रहे हैं। वैसे नेपाल के लोग मतलब डिसिप्लिन तो फॉलो करते ही है ना। हाँ। रूल्स, डिसिप्लिन। दिस इज वेरी क्राउडेड गाइस। अभी हम निकल रहे हैं बसंतपुर से कीर्तिपुर के लिए। नम्रता को इतना सारा स्कूटी चलाना पड़ रहा है। आई होप मैं चला पाता, थोड़ा नम्रता को भी आराम मिलता। No, I can ride even Of course whole she day. can ride better Whole than me, day. but I love riding, you know. you love riding? Yeah. Okay. तो मैं ये कह रहा था कि मतलब मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता चलाने में क्योंकि she can get tired. आप enjoy But- करो। हम्म? आप enjoy करो। मैं एंजॉय करूँ, वो मैं कर रहा हूँ। She's so sweet यार। तो दोस्तों हम आ गए हैं कीर्तिपुर में। एकदम लोकल एरिया मतलब काठमांडू का जो जहाँ पे प्रॉपर यहाँ के जो देसी नेपाली लोग रहते हैं। अभी हम वहाँ पे आ गया। वेरी नॉन टूरिस्ट एरिया, यहाँ पे कोई भी आपको टूरिस्ट नहीं मिलेगा मेरे अलावा। एंड यहाँ पे मुझे लेके आई है नम्रता। भाई तो मिल सकते हैं tourist। मिल सकते हैं क्या? मिल सकते हैं, हाँ, थोड़े कम बहुत होंगे। बहुत अच्छा, कम जो होंगे। मेरे जैसे भूले भटके आ जाते हैं, घूमते रहते हैं जो।
तो वो मिल सकते हैं। ये एक मंदिर है बाघ भैरव, ये अच्छा ये सीधे। वो उसके पीछे राइट। अभी हम लोग वापस आते वक्त यहाँ जाया जाएगा। बाघ भैरव। हाँ ओके। भैरव का मंदिर है। हाँ भैरव का मतलब क्या होता है? भैरव मतलब भैरव ही होता है, पता नहीं क्या होता है। ओके भैरव मतलब भैरव होता है, क्योंकि यहाँ पे काल भैरव है, श्वेत भैरव है और ये वाला बाल भैरव है। बाल माने बच्चा। ये रहा ये मंदिर का एंट्रेंस है। हाँ अभी आएंगे। पहले हम लोग जाएंगे उमा माहेश्वरी। अभी हम जा रहे हैं टॉप पे, है ना? यस टॉप पे, टॉप ऑफ द कीर्तिपुर। टॉप ऑफ द कीर्तिपुर एकदम। ये देखो चढ़ाई चढ़ के जा रहे हैं और यहाँ से हमें दिखेगा काठमांडू का व्यू। वैसे अभी अंधेरा हो गया तो वही लाइट्स वगैरह अच्छे से शहर जो चमकता हुआ दिखेगा। दिन में अलग व्यू होता, अभी अलग व्यू होगा। लेट्स सी। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। अच्छा यहाँ पे अभी हम पार्क कर देंगे अपनी स्कूटी एंड यहाँ से हम वॉक करके जाएंगे ऊपर। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। लोकल हाँ ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ऐसी नेवारी छोटी खाजा छोटी जो ये सब। दुकानें खोली होती है ना, एक टेबल लगा के। हाँ कुमारी हम्म। भी नेवार हाँ फैमिली से ही। अच्छा जो कुमारी होती है वो मेवाड़ फैमिली से होती है। ओके। तो जो फैमिलीज होती है वो वॉलंटियरली अपनी इच्छा से, मतलब जो उनकी बेटी होती होगी हाँ उनको उसके लिए कंटेस्ट करते हैं। यस लाइक उनके लिए प्राउड की बात होती है कि उनके घर से जो है। यस दे फील सो प्राउड। तो मैं यस नो वरीज। हेलो बोल दो। हेलो ओए होए, ओए, sorry। हम जर्मनी से। जर्मनी। हाँ 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 जर्मनी में हिंदी बोलते हैं। अच्छा ऐसा बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो? यूट्यूब चैनल का नाम है दानिश अनलीश। बोलो दानिश अनलीश। हाँ अब बोलो सब्सक्राइब कर दो। क्या कर दो ना? सब्सक्राइब गाइस। बहुत क्यूट है बच्चे। वन साइड ऑफ वो काठमांडू। सबको बताएगा जाके जर्मनी में हिंदी बोलते हैं। नाइस टू मीट यू टू। ओह वाओ। ओके यहाँ से आ रहा है अभी। पता नहीं कैमरा में दिख पाएगा या नहीं, बट आई विल शो यू। यू कैन कम। अच्छा यहाँ भी जा सकते हैं हम। ओके आराम से आराम से। यस अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि तुम्हारे जो जीपीएस लोकेशन एवरीथिंग लास्ट कॉल्स मेरे को ही गए हैं। और मैं फंस जाऊंगा, मेरा इंडिया जाना बंद हो जाएगा वापस। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. दैट विल बी गुड। हाँ दैट विल बी गुड। नेपाल इज जन्नत यू नो। हाँ Heaven. है तो यार। मौसम भी बढ़िया है, लोग भी बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। दैट्स स्वयंभू साइड में। और थामिल हमें ये स्वयंभू के अपोजिट में है, ऑपोजिट उस साइड में। ओके। दिस इज अ टेंपल। तो ऊपर अपना व्यू पॉइंट एंजॉय करने के बाद अभी हम जा रहे हैं कुछ ट्रेडिशनल नेवारी खाना खाने। ये जो जगह है ये यहाँ पे नेवारी लोग ही रहते हैं ना। हाँ हाँ तो वो उसी तरह का जो इनका ट्रेडिशनल फूड है इस एरिया का, वो हम ट्राई करने वाले हैं। मतलब इन्होंने तो ट्राई किया हुआ है, मैं पहली बार कर रहा हूँ। पान भी ओह। मिला, खा के आते हैं पहले। ये मतलब खाने के बाद हम खा सकते हैं। ये गुलकंद वाला पान है मैम। अच्छा ठीक है, इसको हम खाने के बाद खाएंगे। देखो छोटी छोटी दुकानें। पुराने टाइम में ऐसा हुआ करती थी, मतलब मालगुड़ी डेज आता था एक सीरियल वहाँ पे, तो उसमें मैंने ऐसे देखी है इस तरह की दुकानें छोटी छोटी। इट्स अ गुड लोकेशन फॉर शूट एज वेल। लाइक ऐसे कुछ यहाँ पे चेस सीक्वेंस करने हो ना, यहाँ पे बहुत मजे में हो सकते हैं। हम फर्स्ट। ये क्या कर रहे हैं? म्यूजिक एंड तेल लगा रहे हैं। अच्छा ये तेल लगा रहे हैं। हाँ। और ये बच्चा रो रहा है। बच्चा जाए भाड़ में, हम तेल लगवाते हैं। नहीं नहीं अच्छा शी इज लैक्टेटिंग मदर। हाँ। मतलब शी हैव गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। अच्छा तो उनको See, थोड़ा सा yes. अच्छा थोड़ा उनका जो सेवा वगैरह करते हैं। ट्रेडिशन। राइट राइट राइट, मजाक कर रहा था मैं। अरे कुकुर। यहाँ पे यार जगह जगह पे ऐसा पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनके, मतलब जो जो नेपाली कल्चर है उसको दर्शाती है। तो ये क्या है? यात्रा कहते हैं। अच्छा ये यात्रा निकलते हैं ऐसे ऊपर कुछ उठा के। यस यहाँ पर भी जो है ये इनका कहीं किसी का स्वागत हो रहा है। दैट इज आल्सो सम पूजा। हाँ पूजा अच्छा type. कोई पूजा का तरीका है। ये पूजा। देखो यार अपने कल्चर को लाइव रखने के लिए पेंटिंग्स के थ्रू इन्होंने चीजें
नेवारी कम्युनिटी काफी प्राउड लोग बच्चे लग से रहे हैं। लेके बुढ़े लोग तक हाँ। सब चीज कल्चर के बारे में पता रहता है। अच्छा। दे स्ट्रिक्टली फॉलो देयर कल्चर। से हाय। हाँ? से हाय। हाय। हमारी भाभी हेलो भाभी जी। एंड शी इज आस्किंग अबाउट यू। ओ आप वो दो पत्ती वाले ही हो? हाँ जी, मैं दो पत्ती वाला भी ही हूँ और अभी मेरी दाढ़ी नहीं है उतनी जितनी दो पत्ती में थी, वो मैं ही हूँ। My family will be so happy. See this? आप कहाँ से हो? नहीं मतलब आप यहीं से हो, यहीं रहते हो? अच्छा, या इंग्लिश बोलते हो आप? क्या बात है। हजूर ब्लॉग को नाम प्लीज। दानिश अनलीश। दानिश अनलीश। Danish Unleashed. हाँ जी, You will get viral. आई होप सो। क्या बात है। ये देखो भैया बर्तन यहाँ पे, इन बर्तनों में हम खाना खाने वाले हैं। हेलो, नाइस प्लेस यार, ये जगह देखो आप, ये नेवारी कल्चर है यहाँ का। इस तरह से यहाँ पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं और ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा है। इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? नेवालाहाना। नेवालाहाना नाम है इस रेस्टोरेंट का और हम अभी यहाँ नीचे बैठ के खाना खाएंगे। तो दोस्तों, समयबाजी जो हमने ऑर्डर किया था वो आ गया है। दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा यमी लग रहा है और खा के तो और भी मज़ा आ जाएगा। एक और चीज़ हमने इसके साथ ऑर्डर की है जो कि है मोमोज़। काठमांडू के मोमोज़ मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए थे, वो भी अभी आएंगे। एंड हाँ, मोमो 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 या ये राजमा चावल डाल दो। हाँ हाँ, हमें एक बुरी आदत है, हम मोमोज कहते हैं, सब करेक्ट करते रहते हैं नेपाली लोग। इट्स मोमो या सो मोमो भी आएंगे, वो भी खाएंगे, लेकिन अभी बहुत भूख लग रही है तो अभी हम ये शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी बज गया पूरे 10:59 हो गया, मतलब 1 मिनट बाकी है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ थामेल की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि अभी पूरा दिन घूम घूम के मज़ा बहुत आया। मैंने थोड़ा अभी रिलैक्स कर लिया, मैं थोड़ा रेस्ट कर लिया था और अभी मैंने सोचा फिर से बाहर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, यू कैन नॉट मिस फ्राइडेज़। और फ्राइडे को क्रेज़ी सीन रहता है। मैंने ऐसा सुना है कि 3-4 बजे तक सुबह तक पार्टी होती है। पहले काम करते, अभी थोड़ा सा पहले गर्म पानी पीते हैं एंड देन विल गो, क्योंकि दारू तो हमें पीनी है नहीं, क्योंकि वो होती है ज़्यादातर ठंडी। अगर रम मिल गई तो शायद I'll have। ये है मेरा कैफ़े, ये भी काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब ये हॉस्टल का ही है। ये चल रहा है वो हॉट वाला चाहिए मुझे, ये देखो नहीं चल रहा। ये ती बियर है ये? ओह ओके। ये ती रियल में होता है क्या? I don't know. You don't know? गरम है ये? ओके, थैंक यू सो मच। Bro, you look like Messi. Oh shit, really? Yeah, you know that? Oh, did anyone tell you before? Kind of, somebody said that to me. Somebody said I'm it? not sure, yeah. He looks like Messi, no? Hello guys. Hi, Nice I to met meet you Messi. guys. Yeah. Take it easy. Yeah, nice to meet you, bro. What's your name, bro? Danish. Oh, nice to meet you, Benjamin. Benjamin, nice to meet you. Messi, by the way. Benjamin Messi. I'm from Nepal too, yeah. Oh, you're from Nepal? Yeah, Okay. definitely. Nice, yeah. nice. You don't Nice look to meet Nepali. you. Oh, nice to meet you, bro. Nice to meet Take it easy. What's your channel, bro? It's called Danish Unleash. Oh shit. Let me add it. Yeah, sure. YouTube, innit? Yeah, YouTube. Awesome. Italian pizza, fish and chips, pizza, Italian, my dad said she wants to have Italian pizza, but your favourite food is chicken. I'm studying Celia as in my take a selfie, this is a memory of a life. Take it, come on, if you want to be in the selfie, yalla. Consenting to video photography myself. I'm talking about myself. ओ ये है एलओडी भाई, ये रहा, ये जो बहुत मोस्ट फेमस क्लब है यहाँ का, काठमांडू का। इसका नाम है एलओडी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नेपाल। 40th, पहले ये 44th था, उससे पहले 47th था, अभी देखो ये 40th बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड हो गया 2026 के हिसाब से। आई डोंट नो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, जाके चेक करते हैं, लेट्स सी। अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं और लोग यहाँ से बाहर भी आ रहे हैं
दैट इज़ द क्लब। यहाँ से फन करके दारू वारू पी के जो लोग बाहर आ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं। यो व्हाट्स अप, नमस्ते, हाउ इज इट गोइंग? थैंक यू। ओके, दिस इज द एंट्रेंस। पूछते हैं चार्जेस वगैरह क्या है। क्राउड देखो भाई, मैं जाने वाला नहीं हूँ वैसे तो, बट आई विल स्टिल। कैमरा नॉट अलाउड? ओके, आई विल गो। तो बताया भी है इन्होंने कैमरा अलाउड नहीं है, सो आई जस्ट कम आउट। ऐसा तो भाई कुछ किट कैट क्लब तो है नहीं है बर्लिन जैसा जो कह रहे हैं कैमरा नॉट अलाउड। अभी तो मैं अंदर भी नहीं गया था, एंट्रेंस भी था, मैं तो रेट वेट पूछ रहा था उतने में ही। वैसे ना एक बात है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप लोग, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो लोग भी जाते होंगे यहाँ पे क्लब्स वगैरह, मैं तो अंदर जाने वैसे भी नहीं आया था, मैं तो दिखाने के लिए आया था। जो बहुत से लोग जो यहाँ पे आप इतना पैसा बर्बाद करते हो, आपकी इज्जत भी नहीं करते ये लोग, आपसे कैसे बात करते हैं, यू नो लाइक वो आपको लस्ट के बेस पे खींच रहे हैं, आप खींचे जा रहे हो अपनी। नॉट ए गुड डील। हाँ, these places are the worst to be at. The sole reason people are here is because money, sex and नशा। हाँ, जो अगर कोई क्लब नहीं गया है उसके लिए ठीक है, एक बार एक्सपीरियंस कर लो। मैं तो मतलब बहुत गया हूँ शुरू में, उसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट विजिट इन ऑल द कंट्रीज आई विजिट। मोर और लेस सेम ही होता है, बट कुछ जगह अलग होता है, जैसे बर्लिन। भाई रात के 3 बजे हैं और अभी मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल में। ये दीवार याद रख लो, यहाँ पे आ रहा हूँ मतलब ये मेरा हॉस्टल है, ठीक है। तो अभी मैं आ गया हूँ हॉस्टल में, अभी सोने वाला हूँ। अब आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब तो करो ही करो, क्योंकि यार चैनल को आगे बढ़ा के लेके जाना है। अगर चैनल मतलब आगे बढ़ेगा तभी मैं ये सब कर पाऊंगा, नहीं तो फिर ये कंटेंट मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक एक चीज़ मैटर करती है, लाइक से लेके कमेंट, यूट्यूब के एल्गोरिदम ये सब चीज़ें नोटिस करती है और उस चैनल को फिर प्रमोट करती है, और फिर तभी मोनेटाइज होगा, कुछ पैसे इससे मुझे आने लगेंगे, तो फिर मैं और चीज़ें कर पाऊंगा। नहीं तो यार मेरे खुद के पैसे लग रहे हैं अभी इस पर, तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू। बोलते हैं कि तुम लोग अघोरी हैं, तुम लोग शमशान में बैठता है, तो फिर तुम लोग मांस खाते हो मुर्दे के, इसीलिए तो शमशान में बैठता है। अरे उसका मांस खाओगे तो होगा क्या? अरे तुमको कौन सा रोग लग के तुम मन गया? अगर इंडियन होता ना, इतना गाली भी दे देता। अभी आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं वहाँ पे हो जाऊँगा। हम सब, आप मैं सब हिंदू हैं तो आप इस तरह से जल रहे होंगे, मुस्लिम है तो आप दफन होंगे, पारसी हैं तो आपको चीलें खा रही होंगी। सनातन का मतलब ही यही है कि जिसका अंत नहीं होता है, जिसका ना आदि था ना अंत था, जो हमेशा रहेगा। बोला जाएगा एक्टर हो? हाँ, ऐसा दिखता नहीं है। क्या ऐसा लगता नहीं है? नहीं, आप तो सीधा साधा आम इंसान दिखते हो। मैंगो। अच्छा।